प्रोजेक्ट फर्स्ट। तो प्रोजेक्ट रन करने के लिए ओपन हमारा प्रोजेक्ट था इन सी ड्राइव पाइथन प्रोजेक्ट को कमांड प्रॉम्प्ट में ओपन करो। ओके, पाइथन manage.py जस्ट एक बार मेक माइग्रेशंस रन कर लेंगे। ओके, एंड देन वी हैव अ migrate कमांड। ओके, उसके बाद वन मोर दैट इज रन सर्वर। हाँ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತರ ಮುಗೀತು, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನೋ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋದಿರಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಪೈಥಾನ್ manage.py ರನ್ ಸರ್ವರ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕಾవాలి। So run the browser में open करो, let us run the application that is localhost colon 8000 slash एक होम पेज क्रिएट कर लेंगे वेयर आई वांट अ स्टार्टिंग पेज इन दिस। हर बार डायरेक्ट एक्सेस करने से what I will do is I'll create one empty page. So I'll call it as index.html. हमेशा the first file that we create, we call it as a index.html. So inside this, I'll call it as home page. होम पेज के अंदर वी विल हैव ऑल द जो भी पेज चाहिए उसका एक लिंक क्रिएट कर देंगे। सो ए href इज इक्वल टू हम जो भी पेजेस क्रिएट किए उसका पाथ यहाँ पे डालना पड़ता है। सो लेट मी href ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೈಪರ್ ಲಿಂಕ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ। ಹೈಪರ್ ಲಿಂಕ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ದ URL फॉर द फाइल। ಆ ಫೈಲ್ ಎಲ್ಲದ ಆ ಫೈಲ್ URL ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲಿ। सो यहाँ पे हमने फाइल्स क्रिएट किया था, वन वाज द कोर्स मास्टर के लिए। आई विल जस्ट क्रिएट href कोर्स मास्टर और एक नेक्स्ट लाइन में आई विल क्रिएट वन मोर HR। तो सेकेंड हमारे पास है कोर्स डिटेल्स to view all the course information, and then we have the student registration. And I want them to be opened in separate pages. तो मैं क्या करता हूँ, I use one more tag in this, that is targetable क्या आता है underscore blank, so that the page is opened in the next tab in this, क्योंकि सभी pages मेरे को access करना होता है। So I'll keep it like this. तो जब मैं यहाँ पे सिर्फ ओके इंडेक्स पेज क्रिएट किए हैं, देन व्हेनेवर यू क्रिएट अ न्यू पेज, पाथ में जाके एक लिंक ऐड करना है। सो हैव टू ऐड अ लिंक में मैं एम्प्टी देता हूँ, दैट मीन्स व्हेनेवर आई टाइप localhost colon 8000 सिर्फ उतना ही डालता हूँ तो ये फंक्शन कॉल होना चाहिए। सो आई कॉल इंडेक्स द सेम नेम आई विल गिव हियर, एक फंक्शन बाय नेम इंडेक्स आई हैव टू क्रिएट इन views.py। तो views.py ओपन करो, यहाँ पे एक फंक्शन दैट इज f index request और यहाँ से return render open close request comma index.html। so whenever I type localhost colon 8000, मैंने URL में क्या किया, I have given the URL first part as empty। ओके, अगर empty दिए सिर्फ मैंने localhost colon 8000 बोल के क्लिक किया तो it will open the index page in this case। ओके, तो यहाँ पे we will open the student register page, then I have a course details in this case। तो सभी कोर्स यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिखा रहा है और यहाँ पे मेरा स्टूडेंट का डेटा है। इन द लास्ट क्लास वी हैड सीन हाउ टू डायनेमिकली लोड द कोर्स नेम्स इन द टेबल इन दिस केस। ओके, अभी मेरे को क्या है बोले तो whenever I type all the student data and if I select a particular language, वो लैंग्वेज का जो भी फीस है that fees should be put inside this text box। वो टेक्स्ट बॉक्स में ऑटोमेटिकली बिना पेज रिफ्रेश किए आई वांट द डेटाबेस ऑपरेशन टू बी डन। डेटाबेस ऑपरेशन टू बी डन मतलब आप डेटाबेस में जाके यू ब्रिंग द डेटा फॉर दैट पर्टिकुलर कोर्स एंड वो डेटा को यू हैव टू पुट इट इनसाइड द
text box in this case. So this is what we have to do using the Ajax बोल के एक concept आता है. Ajax का concept में without refreshing the web page आपका पेज का डेटा को डेटाबेस के पास सेंड करके fetch the data वहां से डेटा को लेके आना. This is what we will be doing in the today's class in this case. तो उसके लिए the first thing that we have to do is whenever I select any of the course, वहाँ पे कोई कोर्स का नाम सेलेक्ट करता हूँ तो it should call the JavaScript function first in this. तो उसके लिए हम क्या करते हैं? We go to the HTML code of that particular page. That is student register. Student register में we have select tag यहाँ पे. Select tag में हम क्या करते हैं? We have one event called as on change event. On change event is called whenever you make any change in that select tag. वो select tag में कोई option select करते हो, it will call the on change event in this case. Inside this आपको एक JavaScript का function call करना. जैसे कि I want to know get course fees. तो मैं क्या करता हूँ? I will say get course fees open close. So I'm calling this particular function in this case. Second thing, यहाँ पे आपने जो भी कोर्स का नाम दिया है, same name you have to give it in the ID property. ID is also a unique property that is given for the tags in this. जैसे हमारा name property रहता है to identify the tag, same way ID property can be used to identify the tag. And generally हम क्या करते हैं? We give the same name for both name and ID property in this. उसके बाद now on change event में I should call the JavaScript function in this case. So what I will do? Very simple. ये function का नाम copy कर लो. Head tag के अंदर I will create script tag. Sorry, that is script tag को copy करो. Inside the script tag, create a function that is say function. Function का नाम open close flower bracket open close. Okay. जब भी मैं एक कोई ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ इन द सेलेक्ट टैग दिस फंक्शन विल बी कॉल्ड. स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखा रहा हूँ. सो लेट मी चेक ये फंक्शन कॉल होता है कि नहीं. फंक्शन इज कॉल्ड. सेव करो एंड रिफ्रेश द वेब पेज. तो अभी यहाँ पे मैं कुछ भी सेलेक्ट करता हूँ वो मैसेज आना चाहिए. क्लिक किया द फंक्शन इज कॉल्ड. सो इसका कंफर्मेशन यह है कि if I change any of the field, the function is getting called. Okay, this is the first step to make sure that the operation is working fine. अभी मेरे को क्या है बोला तो instead of this message, I want अभी जो भी function मैंने select किया उसका ID property आना चाहिए. Okay, तो मैं क्या करता हूँ? I'll create one variable here. Course ID is equal to document dot get element by id. I had told you about this particular function, that is document dot get element by id. Get element by id is a function which will retrieve the data of a particular tag. Dot value बोल के देना. तो यहाँ पे हम जो टैग का नाम डालते हैं वो टैग के अंदर जो भी आपने वैल्यू सेलेक्ट किया है that value will be retrieved and will be stored in the course ID. जैसे कम बैक वो टैग का जो ID प्रॉपर्टी है कॉपी करो. ID नेम बोथ सेम है. So I'll copy this, paste it here. Whatever is selected, the course ID will be inside this. वो हम अभी डिस्प्ले करते हैं. अभी मेरे को ये डिस्प्ले नहीं होना. The course ID should be displayed now. सेव करो. तो जब भी मैं यहाँ पे कोई कोर्स का नाम सेलेक्ट करता हूँ उसका जो वैल्यू प्रॉपर्टी है द वैल्यू प्रॉपर्टी शुड बी डिस्प्लेड टू द यूजर इन दिस इन द पॉपअप बॉक्स. तो सेलेक्ट किया. I'll go with COBOL. You can see COBOL का वैल्यू है 6. सेम वे अगर मैंने C++ सेलेक्ट किया द कोर्स ID इज 4. अगर मैंने पाइथन बोल के सेलेक्ट किया द कोर्स ID इज 3. सो नाउ यू कैन सी जब भी मैं एक फंक्शन के वो सेलेक्ट टैग के अंदर कोई ऑप्शन चूज कर रहा हूँ इमीडिएटली वो ऑप्शन चूज करने के बाद इट इज शोइंग मी what is the idea of that particular course in this case. So this is a second stage where you can confirm that
मैं जो भी कोर्स सेलेक्ट कर रहा हूँ उसका आईडी मेरे को वहां पे डिस्प्ले कर रहा है. दिस इज सेकेंड स्टेज. नाउ द थर्ड स्टेज इज most important. We have to write a ajax code in this case. ajax code बोले तो क्या? So for that वो हमारे को we get it in the internet. In this case the code directly मिल जाएगा. So what I will do is I will say ajax code using javascript to fetch ajax code to fetch data from database. So you can have a Ajax syntax. Yeah, you can have this. Same W3 Schools is always the best site to get the complete syntax. Now you can see here कैसे काम करता है. You select a particular course, उसका data लेके आता है without refreshing the page, and this data he has brought from the database. तो उसके लिए एक syntax है उसका. So we'll see the syntax in this. Yes. No, we don't want this. We can have another syntax for that. Ajax. Take Ajax with the Django. Ajax. Yes. Postful Ajax. उसका एक स्ट्रक्चर है. We have to get that structure in this. We can get it here. Yes. So ये actually वो JavaScript का use कर रहा है. I don't want the script in this case. This is the syntax that I should have in this case. Yes, made it a bit difficult. Anyways, I'll keep it simple in this case. ये हमारा syntax for the Ajax function in this case. बहुत कॉम्प्लिकेट किया है. ये कोड सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहा है उसका. दिस इज स्टैंडर्ड सिंटैक्स ऑफ द अजैक्स फंक्शन इन दिस केस. अजैक्स फंक्शन के अंदर देयर आर मेनली 4 सेक्शंस इन दिस. 4 सेक्शन इसके अंदर रहते हैं. सो वी हैव टू नो ऑल द 4 सेक्शंस इन दिस. द फर्स्ट सेक्शन इज द यूआरएल. यूआरएल यहाँ पे क्या है बोलो तो आपका जो भी views.py में फंक्शन लिखते हैं विच विल रिट्रीव द कोर्स फीस या आपके मॉडल के अंदर से जो भी डेटा रिट्रीव करता है उसका यूआरएल यहाँ पे देना है. विल सी दैट लेटर. टाइप इज इक्वल टू हमेशा इट विल बी पोस्ट इन दिस केस. नेक्स्ट डेटा बोल के एक सेक्शन रहता है. इन दिस सेक्शन you have to compulsory pass one field called as CSRF middleware token. इस ये compulsory field है. and दूसरा है that is whatever the data you want to pass to that particular function in this case. जैसे अगर मेरे को कोई कोर्स का फीस लेके आना है I have to send in the course ID. If I send in the course ID he will give me the course fees in this. तो कोर्स का ID सेंड करने के लिए we give whatever the name you want. ये आप डिक्लेयर कर सकते हो और यहाँ पे आप अपना कोर्स का आईडी पास करोगे. दैट इज आई विल कॉल इट एज वैल्यू. तो जो भी वैल्यू आपको पास करना है दैट वी गिव इट हियर. CSRF टोकन ये कंपल्सरी फील्ड यू हैव टू पास इट व्हेन यू आर कॉलिंग द अजैक्स फंक्शन इन दिस केस. अगर आपके पास 2-3 वैल्यूज सेंड करना है यू हैव टू फॉलो द सेम मेथड. दैट इज वैल्यू 1 नेम 1 नेम 2 वैल्यू 1 वैल्यू 2 एंड इट गोज ऑन. आपको जितना डेटा सेंड करके यू वांट टू फेच द इंफॉर्मेशन यू हैव टू पास सो मेनी नेम्स इन दिस केस.
along with the value वो डिक्शनरी फॉर्मेट में रहता है. इट इज अ डिक्शनरी फॉर्मेट इफ यू रिमेंबर. नेक्स्ट, यहाँ पे और एक फंक्शन है, आई मीन और एक ब्लॉक है कॉल्ड एज द सक्सेस ब्लॉक. सक्सेस ब्लॉक में क्या होता है, वट एवर द डेटा इज रिट्रीव्ड फ्रॉम द views.py वो आपको यहाँ पे डेटा मिल जाता है. सो यू हैव टू रिमेंबर फर्स्ट किधर जाना बोल के यू हैव टू मेंशन द नेम ऑफ द function in this case. Second, in the type property it will always be post in this case. Data property में to fetch the data मेरे को अगर कुछ वैल्यू सेंड करना है वो फंक्शन को, वो हम पास करते हैं डेटा बोल के सेक्शन में. सक्सेस बोल के एक सेक्शन है, यहाँ पे डेटाबेस को जाके डेटाबेस से जो भी डेटा रिट्रीव किया है वो डेटा को रिटर्न करने के बाद वो इंफॉर्मेशन हमारे को यहाँ पे मिलता है. So these are the 4 blocks that we will be using in the Ajax in this case. I will copy this block, put it in my function. तो वो function को हम यहाँ पे use करते हैं. Now understand how we use all these blocks one by one in this case. Okay. So the first thing I told you, यहाँ पे we have to give a URL जहाँ वो डेटाबेस से डेटा रिट्रीव करेगा. सो आई विल गिव वन नेम कॉल्ड एज AJX get fees बोल के एक फंक्शन. एंड रिमेंबर ये फंक्शन जो आप लिख रहे हो दिस शुड बी देयर इनसाइड द views.py. सो यू हैव views.py in this case. वो views.py में we whatever the function name we give that function should be similar to this in this case. Okay. Next, the method will be post. इसको चेंज नहीं करना है. यहाँ पे आई एम सेंडिंग ओनली द कोर्स आईडी. ओके, तो वैल्यू रहेगा कोर्स आईडी, दैट इज हमारा जो भी कोर्स का आईडी रिट्रीव किए थे वो इसको हम पैरामीटर पास कर रहे हैं. नो नीड टू हैव द सेकंड वन इन दिस केस. हाँ, CSRF अंडरस्कोर मिडलवेयर टोकन इज कंपल्सरी. सो CSRF मिडलवेयर टोकन को डेटा फेच करने के लिए, नाउ दिस इज अ बिट ट्रिकी इन दिस केस. यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आई डिक्लेयर वन मोर वेरिएबल CSRF वैल्यू इज इक्वल टू. तो CSRF वैल्यू रिट्रीव करने के लिए इट इज अ बिट ट्रिकी कोड इन दिस, क्योंकि सेव करो, आई विल शो यू द HTML पेज आपका. रिफ्रेश इट, व्यू पेज सोर्स. यहाँ पे आपके इनपुट टैग में यू हैव गॉट अ CSRF वैल्यू हियर इन दिस. तो यू हैव गॉट अ CSRF मिडलवेयर टोकन बोल के एक टैग रहता है, उसका कुछ वैल्यू है. दिस वैल्यू आल्सो हैज टू बी पास्ड टू द HTML पेज इन दिस केस. सॉरी, आपका views.py को सेंड करना पड़ता है. सो यू हैव टू फेच दिस डेटा. कैसे डेटा रिट्रीव करेंगे? इट इज वेरी सिंपल. यहाँ पे ऑफकोर्स आईडी प्रॉपर्टी नहीं है. अगर आईडी प्रॉपर्टी था बोले तो आई कुड हैव यूज्ड document.getElement by ID बोल के उसका वैल्यू रिट्रीव करता था. लेकिन सिंस देयर इज अ नेम प्रॉपर्टी, थोड़ा ये लेंदी प्रोसीजर है. आई हैव दैट कोड, आई विल कॉपी पेस्ट इट just to save the time in this. Say 3 this is the function where we have used it most frequently. यहाँ पे we have used that Ajax function to fetch the ID property in this case. That is here. तो मैं क्या करता हूँ, जस्ट कॉपी पेस्ट. CSRF बोल के एक वेरिएबल क्रिएट किया, उसके अंदर आई यूज अ डॉलर सिंबल. इनपुट टाइप इज इक्वल टू, ये नेम सेम रहेगा, डॉट वैल्यू प्रॉपर्टी. इट विल फेच द वैल्यू दैट इज स्टोर्ड इनसाइड दिस पर्टिकुलर टैग. वो स्टोर होके वो रिट्रीव करके वो इसके अंदर स्टोर होता है. सो कॉपी दिस एंड दिस विल बी योर सेकेंड पार्ट इन दिस केस. इसको सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है. दिस लाइन यू कैन बाय हार्ट इट इन दिस, ये हमेशा फिक्स रहेगा, ऐसा ही रहेगा वो. ओके, लेकिन व्हेन यू आर यूजिंग दिस डॉलर सिंबल यूज करके जब आप डेटा फेच कर रहे हो, यू हैव टू ऐड वन मोर लाइन इन दिस. जो हम जावास्क्रिप्ट jQuery का लाइन यूज करते हैं. आई डोंट नो आई यूज्ड इट हियर और नॉट. ठीक है, यहाँ पे नहीं है. तो व्हाट वी कैन डू इज
can go to online code, we get the jQuery का एक लाइन मिलता है, to execute the jQuery lines, that is this one. अगर ये कोड नहीं है तो यू कांट रन, एंड इसको रन करना है तो कंपलसरी आपके सिस्टम में इंटरनेट होना चाहिए. सो दिस इज अ jQuery कोड बोल के बोलते हैं. वो डॉलर सिंबल से डेटा फेच करने के लिए हाउ द डॉलर सिंबल वर्क्स वो jQuery बोल के स्क्रिप्ट के अंदर लिखा गया है. सो यू हैव टू ऐड दिस पर्टिकुलर लाइन एंड देन इतना कर दिए तो द डेटा विल बी सेंट टू द फंक्शन कॉल्ड एज Ajax get fees. लेकिन आपके व्यूज में यू डोंट हैव दिस फंक्शन, यू हैव नॉट रिटन दैट फंक्शन. तो व्यू फंक्शन लिखना है तो फर्स्ट थिंग इज आप यूआरएल्स में जाओ, एक नया पाथ क्रिएट करो to call the function. I'll use this. करने के बाद go to views.py, create a function here, that is def, the function name same request colon. इसके अंदर थोड़ा चेंज करना पड़ेगा. That is here it is not a normal code in this case. यहाँ पे क्या है, first you have to fetch the course ID. तो मैं क्या करता हूँ, I will say course ID is equal to request dot post. Inside this आपके JavaScript function से लिखे हैं whatever the value you are passing here, that is course ID, copy करो वो यहाँ पे आएगा. So if you have selected a course 3, मतलब वो 3 का कौन सा भी कोर्स था उसका ID 3 था बोले तो that 3 will be retrieved in this case and it will be stored inside the variable called as course ID. वो variable के अंदर store होता है. अभी ये store होने के बाद I have to go to database, fetch course ID का fees कितना है वो fees को retrieve करना है. So उसके लिए हम क्या करते हैं, we have written the search code in this, वैसा ही इसको लिखते हैं. That is what I will do is I will say यहाँ पे course master data, I will say course master data or course data is equal to course master data dot objects dot filter. Filter के अंदर ID is equal to course ID. ओके, सो मैं क्या कर रहा हूँ, कोर्स मास्टर आईडी के अंदर मैं एक कोर्स का आईडी पास करता हूँ तो उसका पूरा डेटा लेके आ रहा है. आई डोंट वांट ऑल द डेटा, आई वांट ओनली फीस. तो मैं क्या करता हूँ, डॉट वैल्यूज बोल के एक फंक्शन आता है. वैल्यूज फंक्शन इज समथिंग लाइक यू आर फेचिंग वन पर्टिकुलर डेटा फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टेबल. जैसे मेरे को सिर्फ फीस चाहिए उसमें से, सो दिस इज माय मॉडल्स. तो यहाँ पे कोर्स का सिर्फ फीस चाहिए, कॉपी करो और यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर पेस्ट करो. ओके, आफ्टर दैट यू सेव दिस कोड. यहाँ पे कोर्स डेटा के अंदर सिर्फ कोर्स का फीस ऐसा रहता है. हाउ टू फेच दैट, वेरी सिंपल. कोर्स फीस इज इक्वल टू कोर्स डेटा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0 और एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यू हैव टू गिव कोर्स फीस. जो भी यहाँ पे कॉलम का नाम दिए थे वो कॉलम का नाम. ओके, नाउ लेट मी एक्सप्लेन दिस वंस अगेन इन दिस केस. सो फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया, इन द HTML पेज वी क्रिएटेड अ अजैक्स फंक्शन इन दिस केस. वो अजैक्स फंक्शन के अंदर फर्स्ट वी रिट्रीव द कोर्स आईडी. वो यूजर को कौन सा कोर्स चाहिए वो कोर्स का नाम यहाँ पे देते हैं, नाम सेलेक्ट किए तो उसका आईडी यहाँ पे हमारे को मिल जाता है. वी टेक दैट आईडी इन दिस केस. आईडी रिट्रीव करने के बाद वी हैव आल्सो रिट्रीव्ड द CSRF टोकन, बिकॉज मैं बोला कि जब भी आप डेटा views.py को भेजोगे इट इज कंपल्सरी दैट यू हैव टू सेंड द CSRF टोकन ऑफ दैट पर्टिकुलर रिक्वेस्ट इन दिस केस. तो उसकी वजह से मैंने क्या किया वहां पे, ओके यू हैव नॉट स्टडीड अबाउट जावास्क्रिप्ट. एब्सेंट थे क्या आप लोग for JavaScript class? Would have told yesterday only, know that script will be able to. Exams थे हम लोग के. ठीक है, we will have the session on that. अभी फिलहाल I'll explain this particular function. Okay, यहाँ से function को explain करता हूँ. Same code यहाँ पे क्या होता है, maximum is a copy paste code in this case.
इससे ज़्यादा नहीं यूज होता है हमारे को. Okay, so you'll try to understand this particular function first in this case. तो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन लिखा है that is get course fees. उसके अंदर कोर्स का आईडी रिट्रीव किया एंड CSRF टोकन रिट्रीव किया. देन आई एम राइटिंग द कॉलिंग द अजैक्स फंक्शन. अजैक्स फंक्शन के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, आई हैव टेकन यूआरएल्स बोल के एक कॉलम आता है जहाँ पे कौन सा फंक्शन जो कोर्स का फीस लेके आता है उसका फंक्शन का नाम देता हूँ. सेकेंड प्रॉपर्टी इज पोस्ट. डेटा बोल के प्रॉपर्टी में कोर्स का आईडी. अभी मैंने वहां पे पाइथन बोल के सेलेक्ट किया तो कोर्स आईडी 3 है. 3 विल बी रिट्रीव्ड एंड इट विल बी इनिशियलाइज्ड टू कोर्स आईडी. देन आई एम सेंडिंग द CSRF टोकन इन दिस केस. अभी क्या होता है, when I select any one of the option in this, ये function call हुआ, वो डेटा इनिशियलाइज होता है and he will go in search of the function called as ajax get fees. तो ajax get fees क्या करता है, he will go to urls.py. urls.py में ajax get fees को कौन सा फंक्शन कॉल करना चाहिए, तो आप बोल रहे हो व्यूज में ajax get fees बोल के एक फंक्शन है, वहां पे जाओ. सो इट विल गो टू views.py. उसके अंदर he will search for the function ajax get fees. उसके अंदर जो भी आपने कोर्स आईडी सेंड किया था वो कोर्स आईडी को रिट्रीव करता है. कोर्स आईडी को रिट्रीव करके नेक्स्ट थिंग व्हाट इज डूइंग इज आपका कोर्स मास्टर डेटा में जाके वो पर्टिकुलर कोर्स आईडी का फीस कितना है कॉपी कर रहा है. तो वो फीस रिट्रीव करके वो क्या कर रहा है, कोर्स डेटा के अंदर स्टोर होता है. अब कोर्स डेटा के अंदर कोर्स फीस है तो उसको कैसे रिट्रीव करना है, इट इज वेरी सिंपल. और जो भी आपका डेटा ऑब्जेक्ट है उसके अंदर से 0 followed by the column name इतना मेंशन कर दो. the course fees is here. सेव करो. let me print this for the time being. I'm going step by step in this case so you'll understand how it works. तो अभी मेरे को क्या है, वहां पे जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड पेज में अगर कोई मैंने कोर्स सेलेक्ट किया तो इट विल कम टू दिस फंक्शन एंड इट विल फेच द कोर्स फीस and that course fees I am displaying it on the server. फिलहाल सर्वर पे डिस्प्ले कर रहा हूँ. Later I'll put it in the HTML page. So save करो. Let us refresh the page. And here I will select say Java. So of course you can't see refresh कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे. लेकिन क्या हुआ है, you go to the server and यहाँ पे it is throwing an error. Error क्यों दिखा रहा है? Ajax returned response. Okay, it returned none instead. कोई बात नहीं. You can see one line in this place. It is showing course fees is 4,500. That means he has retrieved the course of that particular, fees of that particular subject. और एक बार change करता हूँ. I'll go with Python in this case. तो page refresh नहीं हुआ है, but on the backend screen you can see. Just scroll it down. तो नाउ यू कैन सी कोर्स फीस यहाँ पे 3,500. तो पहले का 3,500 था, अभी 4,500 चेंज हुआ है. श्योर इट इज चेंज्ड. तो यू कैन सी पहले कोर्स फीस 4,500 था, अभी कोर्स फीस 3,500. मतलब फंक्शन यहाँ पे आ रहा है, ही इज फेचिंग द कोर्स फीस. वो कोर्स फीस इसके अंदर प्रिंट भी कर रहा है. नाउ दिस कोर्स फीस हैज टू बी सेंट टू द फ्रंट एंड. आपका HTML पेज को ये कोर्स फीस सेंड करना. यू कांट मेक यूज ऑफ द रेंडर. ये आप जो रेंडर फंक्शन यूज कर रहे थे, यू कांट यूज द रेंडर फंक्शन बिकॉज अगर रेंडर फंक्शन आपने यूज किया तो पेज रिफ्रेश हो जाएगा. पेज रिफ्रेश हो जाएगा मतलब मैंने यहाँ पे सब डेटा एंटर किया था. आई एंटर्ड ऑल द डेटा. एंटर करने के बाद मैंने अगर यहाँ पे कोर्स का नाम सेलेक्ट किया और वहां पे रिटर्न रेंडर क्रिएट किया हुआ तो पेज रिफ्रेश हो जाएगा. इसका मतलब टोकन चेंज हो गया. वॉट एवर द डेटा यू हैव एंटर्ड विल बी एरेज्ड इन दिस. तो मेरे को पेज रिफ्रेश नहीं करना. अगर पेज रिफ्रेश नहीं करना है तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द रिटर्न रेंडर फंक्शन, यहाँ पे हम क्या करते हैं, वी मेक यूज ऑफ ए वन मोर बिल्ट इन फंक्शन कॉल्ड एज JSON response बोल के यूज करते हैं. ओके, JSON response इज वन ऑब्जेक्ट जो बिना पेज को रिफ्रेश किए डेटा को HTML पेज को सेंड करेगा. सो रिमेंबर
there is one return render जो आपका HTML पेज को रिटर्न करेगा लेकिन पेज को रिफ्रेश करेगा. We have a one more function or one more built-in function called as JSON response. Using the JSON response, हम क्या कर सकते हैं? We can send the data to the HTML page without refreshing the web page in this case. तो उसकी वजह से we have to use the JSON response, and again there are some files that I have to fetch. I'll get it from here. Operator. एक built in class वो JSON response access करने के लिए you have to write a line that is import JSON, or you can two lines, that is these two. Okay, so from Django HTTP import JSON response, this is one line, and import JSON, these are the two lines that we have to use. So ये दोनों को copy करता हूँ, put it inside the views.py on the top. So we have used the JSON response in this case. So उसके बाद then we make use of the JSON response class को use करते हैं. कैसे use करते हैं? We have that option here. You already used it. JSON, that is simple. यहाँ पे paste this line. Return JSON response बोल के built-in object लेते हैं. यहाँ पे डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ अ डिक्शनरी के फॉर्मेट में आपको जो भी डेटा का नाम देना है नेम दे सकते हैं. दैट इज आई विल कॉल इट एज कोर्स फीस. सो आई विल गिव इट एज कोर्स फीस, और यहाँ पे लिस्ट फॉर्मेट में सेंड करना पड़ता है. तो उसके लिए लिस्ट में यहाँ पे यू कैन गिव इट एज डायरेक्ट इन दिस बिकॉज वी हैव ओनली वन रिकॉर्ड, एंड मैं देता हूँ यहाँ पे कोर्स फीस. तो माई डेटा वॉज देयर इन द कोर्स फीस. तो मैंने क्या किया, एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ कोर्स फीस बोल के, उसके अंदर आई एम पासिंग द कोर्स फीस. बस सेव करो, रिफ्रेश करो, लेट अस सी हाउ दिस वर्क्स. एनी मिस्टेक्स? इंडेंटेशन लेवल मैच नहीं हुआ है बिकॉज आई कॉपी पेस्टेड फ्रॉम देयर. ओके, तो हो गया. सेव करो एंड सेलेक्ट एनी कोर्स इन दिस केस. ये पेज को भी रिफ्रेश करते हैं. आई सेलेक्ट एनी वन कोर्स इन दिस. तो कोर्स सेलेक्ट किया, देयर इज नो एरर. पहले वो एरर आ रहा था, अभी एरर कुछ नहीं आ रहा है. ओके, लेकिन वो डेटा आपको ये यहाँ से he has already sent the data to your HTML page. कहाँ पे आता है? The data is copied inside the success फंक्शन के अंदर. सक्सेस फंक्शन के अंदर आपका डेटा यहाँ पे आ चुका है. सर हाउ कैन आई सी दिस? वेरी सिंपल. उसको देखने के लिए आई कैन यूज अलर्ट रेस्पॉन्स डॉट. अब जो भी डेटा फैच सेंड करने के लिए वॉट एवर द वेरिएबल नेम यू हैड यूज्ड, दैट इज यहाँ पे मैंने कोर्स फीस बोल के यूज किया था. सो आई विल से रेस्पॉन्स डॉट. सेव करो एंड रिफ्रेश. आई सेलेक्ट वन पर्टिकुलर थिंग, यू कैन सी द कोर्स फीस यहाँ पे आ रहा है. ओके, पेज रिफ्रेश नहीं होगा. दैट मीन्स आई हैव एंटर्ड एनी डेटा, आई चेंज द सब्जेक्ट, तो मैसेज आ रहा है. पेज रिफ्रेश नहीं होगा, दैट मीन्स द डेटा इज स्टिल एज इट इज. नाउ द डेटा हैज बीन ब्रॉट इन दिस प्लेस. अभी यहाँ से वो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आना चाहिए. So text box के अंदर आना चाहिए. It is very simple in this case. That is document dot get element by ID. वो text box का ID यहाँ पे डालेंगे. Text box का ID is this. That is same thing. I'll put ID property. और ये है course fees. तो ऊपर जाइए, dot course fees dot value is equal to response dot course fees को यहाँ पे डाल दो. तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, the data has been fetched, the data is there inside the response dot course fees. तो मैं क्या कर रहा हूँ, whatever the data is there, वो डेटा को course fees बोल के एक
टैग का आईडी है उसका वैल्यू प्रॉपर्टी को आई एम सेटिंग द फीस इन दिस. सेव करो. नाउ रिफ्रेश, click on this COBOL. You can see Vaju 3500 आ गया. I change it, so I'll give it Java. It is 4500. Data आ रहा है without refreshing the page. तो बिना पेज रिफ्रेश किए I am fetching the fees in this case. लेकिन सर ये फीस एडिट कर सकता है. हाँ, करना नहीं चाहिए. तो उसके लिए हम क्या करेंगे? वेरी सिंपल, आई विल मेक दिस रीड ओनली. रीड ओनली कर दिया तो द यूजर कांट मॉडिफाई द कोर्स फीस इन दिस केस. ही कांट टाइप एनीथिंग इनसाइड दिस. So this is how we perform the JavaScript jQuery option in the application in this case. Remember, I know it is very complicated. एक ही attempt में नहीं आएगा, but yes, it is very important because बहुत सारे applications depends on the JavaScript. अभी तो बहुत सारे applications JavaScript पे ही काम करते हैं. Using the Ajax concept only, you have to fetch the data. जैसे if you are working for any ई-कॉमर्स वेबसाइट आप यूज करते हो, चेक द ई-कॉमर्स वेबसाइट, वहाँ पे बहुत सारे फीचर्स है. विदाउट रिफ्रेशिंग द पेज वो डेटाबेस से डेटाबेस ऑपरेशंस करता है. सो दैट मींस ही इज मेकिंग यूज ऑफ द jQuery कॉन्सेप्ट एंड द अजैक्स कॉन्सेप्ट इन दिस. तो यहाँ पे आपको तीन चीज सीखना है, तीन नहीं दो चीज सीखना है. द फर्स्ट थिंग इज द जावास्क्रिप्ट का जो फंक्शन है, दिस फंक्शन इन दिस केस, दिस इज वन थिंग यू हैव टू लर्न. सेकेंड थिंग, यहाँ पे आपका फंक्शन कैसे काम करता है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे 3 लाइन तो पाइथन की ही है. वी हैव स्टडीड दिस मोस्ट ऑफ द टाइम, फेचिंग द डेटा. रिटर्न कैसे कर रहा है दैट यू हैव टू सी. रिटर्न में इंस्टेड ऑफ यूजिंग रिटर्न रेंडर, हियर यू आर मेकिंग यूज ऑफ जेसन रेस्पॉन्स बोल के एक बिल्ट इन क्लास यूज करते हैं. और यहाँ पे पेज का नाम वो सब देने का जरूरत नहीं है, रिक्वेस्ट सेंड करने का जरूरत नहीं है, बिकॉज व्हेनेवर यू आर यूजिंग द रिटर्न फंक्शन तो आपको 3 पैरामीटर रहता है. एक रिक्वेस्ट पेज करना और पेज का नाम देना और पैरामीटर देना. लेकिन इफ यू आर मेकिंग यूज ऑफ द जेसन बोल के ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, यू हैव टू पास ओनली वन पैरामीटर, दैट इज द डेटा दैट यू वांट टू सेंड इन दिस. एक बार ये डेटा आ गया तो सक्सेस फंक्शन के अंदर आपको इंफॉर्मेशन कॉपी हुआ सो रहता है. सो यूजिंग द रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, जो भी आपने यहाँ पे वेरिएबल का नाम दिया था वो वेरिएबल का नाम लो and initialize that to the text box. Okay, so this function plays a very important role. तो अगर आपको ये कोड एक बार समझ में आ गया, you can try with the another examples also in this case. And without practicing this particular concept, don't attend the next class in this case. क्योंकि ये बहुत simple method है. We are exploring a complicated method in the tomorrow's class. मतलब और एक ऑपरेशन, ये सिर्फ एक सिंगल डेटा लेके आने के लिए है. देयर इज एन ऑप्शन वेयर आई कैन हैव मल्टीपल डेटास इन दिस केस. देयर आई कैन हैव मोर देन वन नंबर ऑफ रोज इन दिस केस. तो 3-4 रो का डेटा रिट्रीव करना, ऑल दोस थिंग्स आर देयर. मतलब यहाँ पे 3 कॉन्सेप्ट्स हम सीखते हैं इन द अजाक्स इन दिस. सो फॉर ऑल द 3 कॉन्सेप्ट्स दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट कॉन्सेप्ट इन दिस. तो गो थ्रू दिस, अच्छे से प्रैक्टिस करो. Upload the video after 11 o'clock in this case. 11 o'clock के बाद इसको वीडियो अपलोड करता हूँ. Go through the concept, practice it in this. Once मैं बोल रहा हूँ, if you don't practice it, complicated अगर बोल के छोड़ दिए तो in your life you will never learn this concept again in this. ठीक है? So that's it for today's class. I won't ask you have any doubts. Definitely there will be many doubts in this case. इसीलिए जो भी मैंने रजिस्टर फॉर्म हमने क्रिएट किया था फॉर द सेम एप्लीकेशन यू ट्राई. अगर आप सक्सेस हो गए इसमें, देन आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल टू ट्राई इन द टुमारोज क्लास. ओके, so we'll stop at this point in the today's class. We'll continue with the remaining concept in the tomorrow's class. Thank you everyone.